कुछ चीज़ें इतनी स्पेशल होती हैं कि ये समझ नहीं आता इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो लेट्स स्टार्ट विद अ बिग मुस्कान। मुस्कान का मतलब इज़ नॉट अ फोर्स स्माइल, कोई ज़बरदस्ती आपको बोले हंसो और आप स्माइल करो। मुस्कान वो होती है जो दिल से उठती है और आंखों से झलकती है, जिसे कहते हैं हम लोग। एंड वो उसी जगह पे आज मैं बैठी हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स एन एनजीओ मुस्कान, PAEPID, which is called as Parents Association for Empowerment of People with Intellectual Disabilities. ID जो हम आगे अब इसको रेफर करेंगे as. In 1982, if I go back all this way, a woman named Shanti Olak started an organization with that name, Muskan, in a garage with a part-time idea and a whole life of conviction in doing so. Why she started this journey? Because her son in April 1976 was born with Down syndrome. The world was offering her pity, but she decided to build something so great instead. Today, Muskan has transformed many individuals and many families through their training, which is vocational and life skills, employment support, and assisted living for individuals with intellectual disabilities. They have successfully employed people in companies like Microsoft, Lemon Tree Hotels, DLF, and many more. And also, they offer assisted living. So they have not only transformed lives of individuals but of families for these decades that they have worked for. And its center, the core, is the founder herself, Dr. Shanti Olak. She's a psychologist, a founder, an activist, an author, and above all, she's a mother. Her book, A Mother's Reflections, is one of the most honest accounts which you can read for a person starting her journey from grief to grace completely. And I've read this book. It's a beautiful book. I think each one of us to read it. I am honored today that she's sitting right next to me and I'll be having a conversation with her. Welcome, Dr. Shanti Olak. So let's start, Dr. Olak. Yeah. And let's not start जब आपने मुस्कान को बनाया था. Let's go back to when Puneet was born in April 1976. I think becoming a mother only, you're learning so many new things, but when you came to know he's with Down syndrome and you had studied psychology, that was the main subject. What was going in your mind at that point of time? Puneet was my second child, and I had a daughter who was 6 years of age at that time. So I had no inkling of any kind that there can be something which could be problematic with the child. And I got to know about his condition 2 days after his birth. It felt like as if the life was over forever. Extreme pain. Grief was not leaving me even for a second. And I lived with that kind of a emotion almost, I would say, for 1.5 to 2 years. And all the time making me see, making me think, making me question my reactions, why it is so. Because I realized, I mean, one voice in me was saying, here is an innocent life. And it is very unfair to grieve over a life which is, um, I would say, which is the most wonderful thing to happen in the world, in the universe. And but at the same time, the grief was not leaving me. But in the process, as I was questioning my own reactions and also my responsibility as a mother, slowly what happened was that the another kind of resolve came up in my mind, that whatever be the situation, I have to do best to help his development. And I also made a resolve that I myself will nurture rather than having other people and
doing those kind of things. So every thing that is to be done with the baby, I was doing it. Whether it is playing, whether it is making him to drink, or any other thing. So, and I took it up as a challenge that none of his potential should go waste because I have not attended it. Yeah. At that time, he needed you the Yeah. most. Yes. Any child at that age needs That mother. age, Yeah. that happened. Then, did your study what you're trained as a psychologist really help you in figuring that out? Yeah, it was Or it was more like motherly instincts only? both. I think the psychology subject gave me a lot of understanding about the mind and the cognition and the various mental processes. But at the same time, I am fortunate to have a very introspective kind of temperament. So I analyze, I try to understand, and I do a lot of analysis of my own reactions, my emotions, my understanding, and so on. So, both together, what happened was that my researcher aspect took precedence over the uh, pain that mother was going. So I was observing him, I was observing his reactions, I was playing with him, and all those kind of things, and social situations and people's reactions and everything. But through all that, I was trying to understand his mind. And it opened up a different dimension to my understanding because we are so hooked on to our ways of looking at the world that we fail to realize that everybody is not seeing the world the same way as you are. Yeah. So, as that diversity of his mind, as it was, I was uh, getting in touch with that, that became a very interesting journey also as a psychologist. As a psychologist, and I'm also, I have a, right from my early years, I had a philosophical temperament. So I had to question everything, why it happens like this, what is the meaning of life, how one should live one's life so that one has a sense of fulfillment and satisfaction out of it. Because by that time I had seen a lot of things other people do and they were not engaging me so much. I didn't want to be a part of that race. That I decided much early in my life that I want to experience life, I want to understand, but I don't want to be a part of any race. So all these things helped me overcoming many of the social um, embarrassment Yeah. with children who are different than others they bring to the parents or to the To family. the family, yes. So for me he was first and everything else was secondary. How people think, ठीक है, they do not understand. If they want to ask me something, I will talk to them. I will try and explain. But one thing, I will never share my pain with, because then people will start pitying and people will start having a different kind of perception of my child. And so, in a way, psychologically, we call it acceptance Yeah. that my child is a new life, he has a whole life to learn, to live and learn and enjoy Yeah. this life. So I have to do everything
which makes it possible for him. How was acceptance from your daughter, from your husband, family? Um, my husband, very, very supportive. My daughter was very normal with him. And I think I also realized that our reaction, our responses would be picked up by others, by my daughter also. So since there was a complete acceptance and never वो रोना धोना और लोगों की शिकायतें वो सब कभी आई नहीं, तो later on as when we converse about it, she said, I never realized. It was just part of growing up. So nice, so nice. एक आपकी बुक में आपने यू written this thing, the thought of him being normal does not occur to me as I have seen the limitations of the notion of normalcy. Yeah. This was You see, what is normal? It is ये what. डिबेट बहुत ज्यादा है आजकल ना कि बच्चे हाँ. को आप नॉर्मल बोल रहे हो या आप क्या बोल रहे हो. हाँ. Neurotypical, neurodiverse, there are so many terms which are being used right now. बिल्कुल. और एक बड़ा स्ट्रेट जैकेट सा इमेज बना दिया है बच्चों के लिए हाँ जी. कि ऐसा होना चाहिए. आई थिंक दैट इज ए I feel it is criminal to a growing person because you see, nature has given different propensities, different inclinations to everyone, and what abilities we have. None of us have any control over this. We Yeah. are born with this certain condition. So, what is important is that at individual level, the person is whatever he or she is cherished and respected. But that also means, of course, there are certain social norms which have to be which we all have to learn to have a harmony in relationship with others. Yes. Yeah. So that is very much there. But this norm that people should be like this, people should score like this, people should get entry into colleges or courses like this or other conditions, that looks so I would say so unrealistic. Yeah. So for me, कहते ढांचा सब पे फिट नहीं होता है. हाँ, Simply like that. बिल्कुल फिट नहीं. और ये जो सवाल थे ना मेरे पास जब मैं कॉलेज में थी तब से वो सवाल मेरे अंदर शुरू हो गए थे. और जिसे मैंने पहले कहा कि आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी रेस. तो वहीं से मुझे नॉर्मलसी का जो एक ऐसा होना चाहिए उससे मेरा थोड़ा मन हट गया था. तो मेरे लिए पुनीत का नॉर्मल ना होना wasn't, बल्कि वो जो डाइवर्सिटी है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है उसको. और मैं कई बार ये एक्सरसाइज करती हूँ. अब जैसे फॉर एग्जांपल अब तो पुनीत 50 साल का है एंड उसके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है. कई तरह से सिखाने की समझाने की कोशिश की बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू पिक इट अप. और फिर पता क्या, बजाय इसके कि मैं उससे परेशान हूँ, मुझे ये लगा कि कितना बढ़िया है कि टाइम का अगर नोशन ना हो तो कितने फ्री हो आप. आई नो. वरना टाइम का अपना स्ट्रेस हम लेके चलते हैं. बिल्कुल. और यू टाइम फ्री जोन में हैं आप. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, एक और चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर हिम एवरीबडी इज़ वेरी लवेबल. किसी की जजमेंट नहीं है ये खराब है या ये इसने मुझे ठीक से रिसीव नहीं किया या बात नहीं की, कोई उससे मतलब नहीं. मुझे प्यार करना है, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, सबको. एम्ब्रेसिंग द एंटायर ह्यूमैनिटी. मैंने कहा कितना अच्छा है नॉन जजमेंटल हो पाना कि एंड यू रिलेट विद एवरीवन एंड यू एंजॉय
everyone. that love Yeah. with everyone. Yeah. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, They are free from complications, I think. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. And I realized the beauty of that simplicity. मैं इसकी बताती हूँ आपको. कोविड में I was very stressed कि you see both of us are, me and my husband, we are senior citizens and पुनीत हमारे साथ. तो हमें कि हम में से किसी को भी कोविड हो गया तो कैसे चलेगा. तो I was very much stressed. Can you imagine? कोशिश सब कुछ करते रहे. पुनीत को देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता था. पुनीत was away from all that worry. हम पास्ट की सोच के, फ्यूचर की सोच के कितनी एंजाइटीज अपने इकट्ठी कर लेते हैं और कुछ कर नहीं सकते उसके लिए. फिर भी तो पुनीत was like a fresh air कि आई ऑल्सो, क्यों फ्यूचर का कोई पता नहीं है, क्यों उसको लेके अपने साथ जोड़े हुए हो. आज में जियो. सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल उठते रहते थे, उठते रहते हैं, अभी आज भी उठते रहते हैं. एंड अर्चना, आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड दैट there can be so much inner transformation कि एक बच्चा जब वो पैदा हुआ था तो मेरे लिए इतना बड़ा दुख का कारण था, और आज वही बच्चा मेरे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है लाइफ. उसके थ्रू मैंने समझा है कि प्यार का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल. नाव में रहने का क्या मतलब होता है. हम तो इतना फ्यूचर और पास्ट में घूमते रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो लिविंग इन नाउ का क्या मतलब होता है, पुनीत ने सिखाया आपको. पुनीत ने सिखाया. अच्छा, नॉट टेकिंग बैक कि मुस्कान कैसे बना. ओके, सो ऐसा था कि वही मेरा रिजॉल्व था कि कुछ भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो पुनीत को मैं कर सकती हूँ और मेरी इग्नोरेंस की वजह से ना हो. तो आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर I.C. वर्मा एम्स में. ही वाज हेड ऑफ द जेनेटिक्स डिपार्टमेंट. तो मैं वहाँ पे पुनीत को लेके गई. मैंने कहा कि कोई रिसर्च हो, कोई इस तरीके की चीज़ हो जो पुनीत को के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके. तो बातें करते करते उन्होंने कहा कि शांति जी, देखिए अभी तो इन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये आप लोग पेरेंट्स को इकट्ठे होकर ही ये सब काम करना पड़ेगा. बस वो मेरे अंदर बैठ गई वो बात. एंड हम टाइम टू टाइम, कुछ और भी पेरेंट्स थे, हम डॉक्टर I.C. वर्मा के पास मिलते रहे और सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं. एंड सोसाइटी बन गई. फिर उसके साथ काम शुरू हुए. एंड मेरे अंदर एक चीज़ और काफ़ी बैठ गई थी कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड मेरे अपने अच्छे रिसोर्सेज से, आई हैड अ वेरी सपोर्टिव केयरिंग फैमिली. तो मैंने कहा अब मेरा जो भी मैंने सीखा है पुनीत की परवरिश में, अब ये मुझे, आई ओ दिस टू अदर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज. ये एक अंदर से एक ड्राइव था. तो और अगर मैं ना उसको फॉलो करती ना, आई वुड नॉट हैव बीन अ सेटिस्फाइड पर्सन एट ऑल. इतनी स्ट्रॉन्ग ड्राइव थी. तो मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे कुछ ना कुछ जितना भी कर सकती हूँ करने की कोशिश करूँगी, ताकि ये जो पॉजिटिव लर्निंग्स हैं ये मैं बाकी पेरेंट्स के साथ और बाकी बच्चों के साथ पहुँचा सकूँ. बस उसके बाद अर्चना कैसी सर्कमस्टेंसेस सपोर्ट करती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, लोगों ने हमारे काम को देखा, रिसोर्सेज आने शुरू हो गए. और हमारा फोकस एक हमने किया कि हमारा फोकस है कि हमारे बच्चों की लाइफ की जो क्वालिटी है दैट मस्ट इम्प्रूव.
And that will happen only with training and growth opportunities. And जो families हैं उनको जिस तरह का support चाहिए, knowledge support है, emotional support है, वो हमको देना है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी बहुत है. ज़रूरी है. एक्चुअली फैमिलीज अगर ठीक से इस चीज़ को समझ लें और एक्सेप्ट कर लें तो उनकी कम से कम 50% डिफिकल्टीज निकल जाएंगी. सो उस चीज़ को वो हमारे जहन में रही. एंड मैं वैसे ही थोड़ा, मेरा माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है, तो अच्छा ये करके देखते हैं, अच्छा ये करके देखते हैं. एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि एब्स्ट्रैक्शन में हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. सो हम कॉन्क्रीट ऐसे ही जो कि सेंसरी लर्निंग जिसमें ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें करें. तो हमने फिर वो सिंपल कॉन्क्रीट टास्क लिए. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने सबसे शुरू में मसाला मसाला बनाने बना की सकते हैं. मशीन ली. हमने कहा इसमें सिंपल है, साफ करके उसको डाल के और मशीन से उसको पीसना है, फिर उसको पैक करना है. इस तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई. दिया पेंट करके उसको इंटरेस्टिंग बना के लोगों तक पहुँचाए. और ये भी ज़रूरी था कि ये सब चीज़ें बिकनी भी चाहिए, तो उसका भी, मार्केटिंग का भी ध्यान रखा. एंड ये मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि एडल्टहुड के लिए कुछ है नहीं अभी सोसाइटी में, तो हमें क्रिएट करना है. एंड एडल्टहुड विदाउट वर्क विल नॉट Yeah. बी फ्रूटफुल. Yes. उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी. तो इसीलिए खाली ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग के बाद Employment also, वो भी ज़रूरी है. एंड एक विश्वास था. और वैसे भी, another thing that psychology taught me, that human mind is programmed for learning. This is inherent nature of mind. So अगर नेचर ने प्रोग्राम किया है हमें, तो हमें तरीके ही ढूंढने हैं कि किस तरह से, कौन कौन सी चीज़ें लाइफ को जीने के लिए हमें सीखनी है और हम कैसे उसको सिखाएं. तो इसीलिए हमने वो एडल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया. और उसके साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके साथ बाकी सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो हम सबकी लाइफ में होती हैं, स्पोर्ट्स हो गए, रेक्रिएशन है, म्यूज़िक है, डांस है, एंड ऑल दोज, वो सब चीज़ें भी होती रही. ये सब बड़े सक्सेसफुल रहे ये एक्सपेरिमेंट. दैट इज़ व्हाट आई एम रियली सो मच इन ग्रेटिट्यूड टू द whatever the higher powers are there, कि कभी इन बच्चों ने हमें निराश नहीं किया. जो हमने ठीक से चुना और ठीक से सिखाने की कोशिश की, बहुत उत्साह से उन्होंने लर्न किया उसको, और लर्न करके दे वर रेडी टू वर्क, वेरी डिसिप्लिन्ड वर्कर्स. How was your journey? But वो गैराज से लेकर अब इतने बड़ी बोले तुम, वो तो एक अपने आप में. आई नो. और हुआ क्या कि गैराज में जब थे, फिर उस बरसाती में गए, फिर हम एक बेसमेंट में गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़े दिनों बाद लोग कहते हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए, जैसे अभी भी है, लंबे समय तक किराए पे नहीं मिलता. तो मैं कॉलेज से, कॉलेज अपना GK1 के पास था, ये हौस खास में था हमारा. तो मैं, जब मेरी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाती तो मैं आया करती थी सेंटर में. और उस समय मैं एक चीज़ देखती थी. उस समय तक, मैं ये आपको 93-94 की बात बता रही हूँ, तकरीबन 30 लड़के लड़कियाँ, 6-7 स्टाफ, एक बेसमेंट में जिसमें एक खाली वॉशरूम था और एक छोटा सा किचन था, और वही स्टोरेज थी, वही हमारा एक्टिविटी का था. तो जब मैं आती थी तो एक चीज़ मुझे लगती थी, मैंने कहा देखो कितनी जल्दी जल्दी स्कूल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, हमारे बच्चे भी डिज़र्व करते हैं एक अच्छी जगह, हमारे बच्चे भी डिज़र्व करते हैं, एंड हमारे टीचर्स भी डिज़र्व. आई हैव ए वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर
each and every team member of मुस्कान, क्योंकि ग्राउंड में जब आप काम करते हैं तभी चीजें उठ के निकल के आती हैं. बिल्कुल. तो मुझे था कि they deserve a better place. Yes. And as the luck would have it, my husband, he was working as architect Okay. in DDA, and all his friends were very sensitized. So DDA had already made a policy that 5% of the primary school sites will be reserved for children with disability. उसके Right, right, अंडर हमको ये लैंड मिली. लैंड मिल गई तो बिल्डिंग भी बनानी थी और पैसा कुछ भी नहीं था बैंक में. हमने कहा देखेंगे, लोगों से सपोर्ट लेंगे. So my husband and his friends, all of them, they gave their proficiency, professional skills without any charging. बहुत सपोर्ट किया सबने. And Aluwalia Contracts, such a big contractor, he took this small project. मतलब जिसे कि ना, all positive forces were coming together to make it happen. और अपने मेरे अंदर क्या था कि मेरा फोकस कभी बच्चों की लाइफ से हटा नहीं. बहुत इस रास्ते में भी ना बड़ी सारी और चीज़ें होती रहती हैं. बिल्कुल होंगे. तो उन सब से मुझे लगा वो सब बेकार है. एंड फिर एक समय आया कि जब मेरे लिए दोनों चीज़ों को देखना मुश्किल था. कॉलेज I know you में were पढ़ा teaching रही at थी. LSR. Yeah, I was teaching at LSR. 76 I joined in July. Puneet was After born the- in April. Yeah. So, and then I took voluntary retirement. Okay. 2005 में मैंने लिया. एंड फिर बिल्डिंग भी बन गई थी तब तक, तो फिर फुल टाइम अपना. आपको लगा नहीं, मतलब एक रनिंग इनकम या एक स्टेडी करियर फॉर योरसेल्फ, उसको छोड़कर सडनली लीविंग दैट एंड पता नहीं कहाँ से आ गई थी ये रिजॉल्व, क्योंकि ये तो था कि भाई देखो 7-8 साल रिटायरमेंट के थे मेरे जब मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया. तो मैंने कहा एक 7-8 साल बाद भी फिर भी तो इनकम तो कम हो जाएगी, पेंशन तो उतनी रहेगी नहीं, तो मैं सोच लूँगी अभी से ही मुझे रिड्यूस्ड इनकम है. तो उसके बिना होता नहीं, क्योंकि बहुत कुछ करने वाला था. किसी भी कोई चीज करनी है तो उसको पूरा टाइम और डेडिकेशन हाँ, के साथ आपको लगना पड़ता है. हाँ. और एक चीज़ और मैं सोचती थी कि कॉलेज में तो पढ़ाने के लिए और लोग आ जाएंगे, बट इस वाले रोल को करने के लिए नहीं, आप नहीं मिलेंगे लोग. नहीं मिलेंगे लोग. तो मैंने कहा नहीं, ये करना ही है. वो अंदर से एक स्ट्रेंथ थी, एक ड्राइव थी कि करना है बस. सो एंड आई एम ए पर्सन, मेरा सेल्फ सबसे आगे नहीं रहता. थोड़ा वो आजकल उसको सेल्फ डिनायल कहते हैं, मैं उसको सेल्फ डिनायल नहीं कहती. The others also are equally important as our own selves. यस, तो बैलेंस करना जरूरी है. बैलेंस करना जरूरी है. एंड अ वुमन नोज इट वेरी वेरी वेल. वेल, because they anyway are हाँ, balancing a lot of things in life. I know. But I have come across some parents, मेरे friends हैं, उनका एक स्पेशली एक केस में अगर आपको बात करूँ, उनके भी एक बच्चा नॉर्मल और एक सेकंड चाइल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज आल्सो विद डाउन सिंड्रोम, वो पास्ट अवे वेरी अर्ली इन लाइफ. पर वो कहती थी कि जितना ख्याल मेरा वो बच्चा रख सकता है, मेरी आंखों से वो समझ जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है, या मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ. बाकी किसी को परवाह है नहीं घर में, बट वो अपनी आंखों से, अपने इशारों से विल मेक श्योर कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, मैंने किया है या चीज़ें नहीं, मैंने अपनी दवाई भी खाई है नहीं खाई है. So, are these kids more sensitive to your needs? Very caring. Very caring. Very caring. Very caring.
very loving, very affectionate, and jealousy or competition होता ही doesn't नहीं touch है. them. बड़ा खुश है किसी और को कुछ इनाम मिल गया या किसी और को कुछ मिला, उसमें भी उतना ही खुश हैं जितना खुद मिला. सो केयरिंग तो इतने हैं कि अब मैं जैसे पुनीत की बात करूं, यहाँ पे भी हमारे बच्चे सब एक दूसरे के लिए बहुत ध्यान रखते हैं. पुनीत को ज़रा पता चल जाए कि आज मम्मी इस समय लेटती नहीं है, आज लेटी हुई है, तो कई बार आके पूछेगा तेरी तबीयत ठीक है, पानी लाऊं, चादर मेरे ऊपर डाल देगा. अपने in his own small little ways he expresses his concern and care. My husband is 85 plus, so पुनीत ध्यान रखेगा कि अच्छा हम उन्हें कहते हैं कि दोनों हाथों में नहीं लेके आजकल जाओ, तो पानी का गिलास रखाएगा, उनकी खाने की प्लेट्स उठा लेगा, जहाँ पे भी नहा के आया अच्छा तौलिया डाल देगा बिना कहे. So all these little things Oh, nice. बहुत बिना किसी के कहे करते हैं. आपकी बुक में आपने मेंशन हुआ था 9 principles for parents dealing with grief and stress. उसके बारे में if you can share something about it. मुझे थोड़ा सा वो वो उसमें ये था पढ़ना. कि no one's fault, starting with minimum expectations, हाँ preparing for the worst, you don't seek sympathy. हाँ ओके. These lines आपने दिखा था उसके अंदर. मतलब have you lived this kind of thing? These principles जो थे सारे. ये सब मैंने जीते हुए सीखे हैं. एंड ऐसी सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने बच्चों से इतनी इमेजिनेशन लेके चलते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं. Yes. इतनी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं. दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक, इट इज़ वेरी अनफेयर टू द चाइल्ड. Yeah. बल्कि मुझे आजकल और भी ज़्यादा परेशानी होती है जब मैं बच्चों को, पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों से कि नंबर लाना है, स्पोर्ट्स में भी तुमको टॉप पे रहना है और इसमें भी टॉप पे. अरे यार जीने तो दो बच्चे को आराम से. ये सब चीज़ें आएंगी. Propensities, nature has given all of us a certain inclinations we will develop. So expectations. Too much. इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्ट नहीं करो, बट बच्चे की इंटरेस्ट को और इंक्लिनेशंस को देखते हुए एक रास्ता भी उसको रास्ता दिखाओ. हाँ, Let them उसका walk रास्ता. their path. Yeah. Most of the parents normally say कि ये बच्चे जो होते हैं with intellectual disabilities, they're very aggressive. They're very loud. Probably they hit also. ऐसा क्यों होता है? Is that part of the problem or? आपने बहुत सही कहा. और कि अक्सर हमारे बच्चों में इस तरीके की बिहेवियर्स आ जाते हैं, जैसे चीज़ें फेंकने या हिट करना लोगों को या स्क्रीम करना. सो जब मैंने इन सब चीज़ों को करीब से देखा अपने बच्चों के साथ, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स as if they are devoid of it. Other people treat them as if they don't have these needs. And whereas they have exactly the same kind of emotional and psychological needs which any growing person has. अब वो recognize होती नहीं है और होता क्या है कि नेग्लेक्ट होती रहती है. Yeah. फिर वो एक्सप्रेस इस तरह से होती इस तरह से होती है. देयर इज नो रीजन एंड आई एम so confident about it. There is no reason
that any child would become aggressive or abusive behavior अगर उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड समझ के और उसके मौके नहीं दिए जाएं। बिल्कुल। यहाँ तक कि उनकी बात को सुनने के लिए भी, क्योंकि समझ नहीं आती, हम अपनी तरह से समझना चाहते हैं, अपनी तरह से तो समझने से हटना पड़ेगा आपको। और कई बार हम लोग आपस में भी कहते एक हैं दूसरे की बात नहीं समझ हाँ, पाते हैं। नहीं समझ सकते। सो वो हटेंगे तभी आप उसकी दुनिया, उसकी चीजों को समझ पाएंगे। एंड इमोशनल नीड्स का क्या मतलब है? प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर है, एप्रिसिएशन है, हर वक्त क्रिटिसाइज नहीं करते रहना कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत। तो क्या करेगा बच्चा? उसको गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। कुछ काम करने के लिए उसके पास नहीं। साइकोलॉजिकल नीड फॉर अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, so much. All of us want to feel that I can do this. Yes. पर हमने मौका ही नहीं दिया तो वो क्या करेगा फिर? तो ये सब उसी वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, सेंसिटिव टॉपिक, बट जिस पे आई थिंक बात करना थोड़ा ज़रूरी है, या मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को, या जैसे नॉर्मल बच्चों को बड़े होते हैं सिखाते हैं कि दे आर अ गर्ल और अ बॉय, वी टीच देम ऑफ द सेक्स दे हैव, उनकी सेक्सुअल नीड्स हैं तो उनको हम थोड़ा सी डायरेक्शन देते हैं बच्चों की। इन बच्चों के साथ भी ग्रोइंग अप वही स्टेजेस होती हैं, कोई अलग स्टेजेस तो नहीं होती होंगी। तो इनको कैसे समझाया जाता है व्हेन दे आर सो, दे डोंट अंडरस्टैंड सो मच ऑफ द वर्ल्ड? इस एस्पेक्ट को कैसे संभाला जाता है और समझाया जाता है इनको? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि द sexual needs are just like anybody else, and it goes through the same cycle, जैसे puberty से शुरू होके and various forms of expressions. इंटरेस्ट ज़्यादा लड़कियों में लेना, एंड उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो विजुअल है, मूवीज़ हैं, गाने हैं, सब चीज़ों में उस तरीके का इंटरेस्ट आना, इट्स ए डिफ़िकल्ट एरिया टू फॉर ट्रेनिंग। तो हम लोग ने क्या किया कि पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। और वो कई चीज़ों से होता है। कईयों को तो फैमिली ये भी बताना भूल जाती है कि भाई तुम बाथरूम गए हो, कपड़े मतलब अगर नहा कर निकले हो तो यू कैंट कम आउट लाइक दिस, यू हैव टू रैप अप आइदर द टॉवल या कपड़े पहन कर रहो। तो पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो आपको पब्लिक एंड प्राइवेट का, कौन सी एक्टिविटीज़ आर प्राइवेट और कौन सी पब्लिक हैं। फिर जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको थोड़ा डायरेक्शन देना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की सेशंस हमने काफ़ी टाइम किए, और गर्ल्स को जैसे अच्छा मेहंदी लगानी है, कपड़े, यू हैव टू मेकअप करना है, बड़ा इंटरेस्ट आता था। नाउ दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। लुकिंग नाइस, जी हाँ, अट्रैक्टिव, लुकिंग नाइस एंड अट्रैक्टिव। सिमिलरली बॉयज के साथ अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। फिर तुम उसमें देखो, मतलब टेलीविजन में जो कुछ भी मूवीज हैं, किसी भी तरीके के सीन्स देखने दीजिए। दिस इज नो प्रॉब्लम इन कि उससे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना घटेगी, बट ये है एक अलग तरह का एक्सप्रेशन इट गिव्स। सो क्या पता नहीं, वाइकेरियस सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं। सो all other forms of expressions are fine, but ये तो बताना पड़ता है कि भाई लड़कियों के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, नहीं तो they will be shunned by other people. So do's and don'ts बिल्कुल सिखाने पड़ते हैं।
इन चीज़ों में. But marriage remains a very remote possibility. Sexual relations remains a very, very remote possibility. Yeah, it's understandable. And Sad but understandable. एक चीज़ और अभी हमारे रिसेंटली 1-2 साल में हमारे नोटिस में आई कि हमारा एक लड़का ही वॉज हाई फंक्शनिंग, आई वुड से ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन. वो काम के बाद ही यूज्ड टू रीच होम लेट, और देर आर सर्टन मसाज सेंटर्स, वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैपन एंड वो पैसे देता है. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. Yeah, this will happen. So it is a tough situation to deal with, but ये देखना पड़ेगा कि um, the socially approved behaviors जरूरी है. जरूरी है. जरूरी है. It's difficult. This journey is difficult. It's not easy. It's not easy. Yeah. Yeah. So I remember there was a. I was all for it कि my son when he grows तो उसी की ही condition का कोई लड़की जिससे फ्रेंडली हो सके and they get married and so on. पर जैसे बड़े होती गई, जैसे मैं भी बड़ी होती गई, I realized कि 2 लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती is है. not रियलिस्टिक, वो नहीं कर पाएंगे. और इसको ये तो है नहीं आपने किसी को लगा लिया वो देख लेगा, यू विल हैव टू गेट इट. Yeah. तो नहीं हो सकता वो चीजें. It's very difficult. तो मुझे कभी कभी वो डेप्रिवेशन से थोड़ी उदासी भी होती थी. फिर देन आई टोल्ड माई सेल्फ लाइफ में सबको सब कुछ नहीं नहीं मिलता, मिलता. तो इसको तो ऐसे ही लेना पड़ेगा. Yeah. पर उसको और बहुत कुछ मिला, मतलब जो शायद आई नो. और इतना एंड एक चीज और भी है, कम्युनिकेशन. opportunities for communication are very important in dealing with many of these things. and मैं realize कर रही हूँ मेरा बेटा जो 50 साल का है हो गया है, उसकी communication needs और बढ़ती चली जा रही है. and I'm fully available when he wants to talk to me. फिर हम दोनों की बड़ी अच्छी बड़ी मजेदार बात होती है. I enjoy the. You have to enjoy the conversation, otherwise communication need नहीं fulfill होगी. अगर ये कहते हैं हाँ करते रहो तो उससे नहीं बात बनती. और मैंने कहा कि मतलब उस कम्युनिकेशन से किसी आदमी का एक माइंड सेट आपको नजर आ रहा है. so interesting. Take the things as they are without judgment. Now this is a very big learning. True. True. So coming now to the new section जो मैंने create करा है, which is called The World is Asking. I think a lot of people आजकल हमारा बेस्ट हो गया, हम सब कुछ गूगल बाबा को बोल देते हैं, सर्च में डाल देते हैं और हम आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं. Sometimes those answers are good, sometimes they are incorrect also. So I thought today, since you have this mass of wealth of knowledge about ID people and families who have gone through it, so why don't you answer directly to people today? First commonly asked question was, my child has been diagnosed with an intellectual disability. I don't know what to do. Where do I even begin? The first thing is try to gain knowledge about what kind of impact intellectual disability has on a growing baby and a child and a person. Second thing is dealing with one's own emotions, because they prevent us from thinking and doing things which are required for child's growth.
Next is, will my child with Down syndrome ever be able to live independently? Not to my knowledge. They That's require certain amount of support because when you look at from their perspective, there's so many things which are undefined for them in the environment. So somebody has to support in all that. Can a person with intellectual disability get a real job, not just a sheltered one? Yes, they can, and they are very much able to hold on to the job also, full time job. But these jobs have to be more manual in nature rather than thinking or judgment, etc. And it all depends upon how this person has been groomed for various kind of skills. But they're very much employable. In fact, they turn out to be very good employees. This is what our experience in the last 10 years has shown. Wherever they are placed, the employers have been very happy with them. They're very loyal, very committed workers. Next, my child with ID is becoming aggressive and difficult. I am exhausted. Am I doing something wrong? If the child is becoming aggressive, it all depends upon also what is the age that you are talking. If the child is very small, then he or she has to learn lot about social skills and interpersonal behavior, etc. uh, if the child is older, then definitely there are certain things which are bothering the person, and that is mostly the kind of reactions that people give to him, and also the lack of opportunities where they can learn and they can have a sense of achievement and accomplishment. So behavior difficulties always are expression of some emotional difficulties that the child is going through. It is never without reason. And what is important is love, respect, care, and sense of responsibility. What happens to my child after I am gone? Who will take care of them? I think. Very huge question, very complex one. We do not have easy answers because our society is going through a lot of social changes where the families are becoming smaller and smaller. One thing is that the other sibling, we have to not throw the responsibility, but we have to groom the other person to support the sibling who has disability uh, throughout life. The other thing is that services need to come where uh, some institutions or some organizations, uh, rather than creating institution, I'm not saying that, but home-based services. So there can be a team of professionals, a team of caregivers who can be assigned to certain families on certain days, on certain time, where this person is getting opportunities to learn as well as structure the day with the activities which is needed for the child to grow more responsible and also for entertainment, etc. One more thing, that including the child in real manner in family affairs, and it can be done. It can be done. Small things we just overlook. For example, you see, suppose somebody is coming to our house. We can talk to the child that so and so is coming, and so you know how to
what are the do's and don'ts. And this goes on. This is also a part of conversation. Similarly, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है आज, तुम बताओ क्या खाना है. I mean, these are small things where you engage the person and include in decision making in day to day living. So, in your book, you are referring to 9 principles for parenting dealing with, for parents dealing with grief and stress. I would like उसके बारे में आप कुछ अगर यहाँ पे बोलना चाहो तो. ये सारी चीज़ें जो उसमें थॉट्स मैंने शेयर किए हैं, ये सब अपने आप को समझते हुए जो लर्निंग्स हुई हैं उन्हीं को मैंने शेयर किया है. सबसे पहला थॉट आता है वाई मी, बिल्कुल. और उसके साथ गिल्ट एसोसिएटेड होता है. Maybe something wrong that I have done. हाँ, that I have done. Yeah. Even realizing that my body could produce Yeah. someone who's in certain ways will create difficulty for the child is a very difficult Difficult to accept. very difficult thought to deal with. Yeah. तो why me वहाँ से निकल के आता है. And fortunately what happened when I used to think why me, तो उसी समय एक और ख्याल आता था why not me. Why all bad things should happen to others and all good things should happen to us. Yeah. So, and that showed its unreality to me. It helped me in understanding many things. Then I also very early recognized that my child would be accepted and respected by others only if I would respect. And acceptance means whatever is the condition, the child is dear to me. My Yeah. child is dear to me. So, मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया जहान का प्यार और रिस्पेक्ट इसको देनी है. तो ये वैसे ये वाला स्टेटमेंट ओनली नॉट फॉर चिल्ड्रन विद आईडी, फॉर एनी चाइल्ड दैट यू हाँ, हैव. अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो दूसरे भी नहीं देंगे. बिल्कुल. और एनी रिलेशन फॉर दैट हाँ, मैटर. कोई नहीं देगा. कोई नहीं देगा. कोई इट नहीं इज देगा. हाउ यू डील विद दैट पर्सन और जी हाँ. सिचुएशन, दूसरे वैसे ही करेंगे उसको. बिल्कुल. तो that also helped me in dealing with many of my own reactions. Yeah. These were antidotes, you can say, to my depression and this thing. फिर मैंने एक और चीज की कि ये जो मेरे I was feeling very bad. Not only two things were happening. एक तो grief or depression was a reaction which all the time I was immersed in that. Secondly, मुझे अंदर से गिल्ट होता था कि इस इनोसेंट बच्चे के लिए मैं इसकी एग्जिस्टेंस को, लाइफ को, आई एम इंसल्टिंग हिज लाइफ इफ आई एम ग्रीविंग ओवर इट. एंड उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? किसी की भी क्या गलती है? रादर कि किसी की भी गलती नहीं है. हम लोग किन किन सर्कमस्टेंसेस में किस किस कंडीशंस के साथ पैदा होते हैं. दिस इज some super order. Yeah. We do not understand that. Yes. तो मैंने जब रियलाइज किया कि अब मेरी आदत थी सेल्फ एनालिसिस करने की, तो मैं सोचती कि ये आ क्यों रहा है इतना ग्रीफ. एक आम आदमी सोचेगा और क्या होगा ऐसा, अगर इंसिडेंट होगा तो आपको यू विल बी इन पेन. नहीं, पर मैं ये सोचती थी कि मैं तो आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ ए वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और यहाँ एक छोटा सा बेबी है जिसकी पूरी लाइफ है, उसको एक तरह की कंडीशंस में जीनी पड़ेगी. और मैं जो हूँ वो क्यों इतना महसूस कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपनी सोशल इमेज की
परवाह बहुत है. All of us, anything which hammers our self-image In front of the society. in front of society are the most painful experiences. So then I saw the unreality or distortions in my thinking. How does it matter what other people think? Does it really matter? Yeah. Why should I live for other people? I am in a situation where I have to create a certain kind of environment where this baby grows happily Grows and learns whatever the other children do. So एक वो उसने मुझे वो हेल्प किया, and in that process we call it deconditioning, and social conditionings are very deep, very very deep. So जितना हम समझ जाएं कि सोशल कंडीशनिंग्स कुछ चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं, पर जहाँ हेल्प नहीं कर रहे हैं और अपने को बराबर जज करते रहते हैं इन नेगेटिव लाइट, उतनी जल्दी हम फ्री भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों से. सो आई लर्नड दैट. देन आई ऑल्सो रियलाइज कि एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी क्या है. ये थोड़ी ना अब जैसे हम आजकल इतना है कि पेरेंट्स और जितने दे आर इकोनॉमिकली बेटर प्लेस, उतना ही ज़्यादा उनकी एम्बिशन अपने बच्चों के बारे में है कि वो यहाँ जाएं, यहाँ पढ़ें, एंड इस तरीके के इंसान बनना है, और वो भी मोर इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट. Yeah. सो And that was something that you want to prove to the society. हाँ, टू द सोसाइटी, एंड थ्रू दैट Yeah. यू आर प्रूविंग Through that योरसेल्फ. child, yeah. तो अपनी सेल्फ इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है उस Yeah. समय. तो हमने कहा ये भी बहुत अनरियलिस्टिक थॉट है, क्योंकि हमारा व्हेन वी हैव चोजन टू बी पेरेंट, आवर ड्यूटी इज टू हेल्प द चाइल्ड ग्रो, Yes. नथिंग एल्स. Yes. उससे ज़्यादा हमारी ड्यूटी नहीं है. हाँ. तो उसको भी रियलाइज किया कि काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्टॉर्शन से हम अपने लिए परेशानी के कारण बना देते हैं बिल्कुल, बिल्कुल. अपने आप से. आपने उसमें ये भी लिखा था कि that you know people with intellectual disability navigate a world not designed with their needs in mind. मतलब Yes. वर्ल्ड बना हुआ है बट वहाँ पर उनके लिए जगह नहीं है, बिकॉज उनके लिए बना नहीं है वो. हाँ, उनके लिए. मतलब मॉल्स कह लो, खाने की जगह कह लो, कहीं स्कूल्स कह लो, आप कहीं पे भी उनकी नीड्स के हिसाब से कुछ चीजें नहीं बनी है. बिल्कुल. एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी. ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज, यस. एंड तभी तो आजकल एक और कुछ सालों से देयर इज अनदर थॉट which is touching, that social model of disability, that the person who has that condition doesn't feel कि ये condition क्यों है, because he has lived with that condition, yeah. whether it उनके is लिए वो visual normal है. impairment, उनके लिए वही है. But what happens is that they are supposed to negotiate in a world in the same manner as other people with those faculties are. तो ये तो बड़ा अनफेयर है. बिल्कुल. तो तभी अगर वो एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हर जगह हम ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि हम पहुंच सकें. और क्यों नहीं पहुंच सके? Why my condition should become a barrier? It is the society who has to. It's a very powerful notion of justice, social justice. तो अब इन चीज़ों को तो अच्छा, और हमारे बच्चों की क्या, उनकी वो समझ और तरह से रहें इस दुनिया को और अपने आसपास के लोगों को. नॉर्म कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे बैठना नहीं है, ऐसे खाना नहीं है. कुछ हद तक ठीक है,
we all learn the social yeah, क्या कहना चाहिए etiquettes, yes, but अगर मेरी कंडीशन मुझे प्रिवेंट करती है उस चीज को समझने में वैसे जैसे कि बाकी लोग समझ रहे हैं, तो मेरी भी एक वजूद है बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसको भी लोगों को समझना चाहिए. सो बल्कि होता क्या है कि मेरे मन में बड़ा एक्स्ट्रा एक अफेक्शन अपने बच्चों के लिए आता है, यहाँ पे सबके लिए, कि इनकी दुनिया छू कर तो देखो कितनी प्यारी है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए सारे बाकी जो सोशल कंडीशनिंग्स हैं. एंड उसी को लेके ना होता क्या है, उसी को लेके पेरेंट्स निकल नहीं पाते उस चीज़ से और बहुत परेशान भी रहते हैं और वो बच्चे को सही इंटरेक्शन नहीं दे पाते, सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाते. फिर बच्चों में इमोशनल डिफिकल्टीज आनी शुरू होती हैं, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं. फिर इसका एक रीजन सिर्फ पेरेंट्स की थिंकिंग नहीं छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन जो पेरेंट्स के ऊपर आता है, विच इज मेडिकल बर्डन, बच्चों की अलग से जो क्लासेस वगैरह होती हैं जो उनको अलग तरह से ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए जो एक्सपेंस होता है, प्लेस अनदर बर्डन ऑन दोज पेरेंट्स एज वेल, जिसके लिए देयर आर नो सपोर्ट सिस्टम्स. बिल्कुल, यू आर वेरी राइट. एक दो सपोर्ट सिस्टम है, इनर स्ट्रेंथ है, रियलिस्टिक ओरिएंटेशन एंड ऑल दैट. एंड द सेकंड इज कि उस बच्चे की नीड्स को अटेंड करने के लिए जो कुछ भी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स हों जहाँ पर कि वो कुछ चीज़ों को सीख सके, ये सारी चीज़ें, एंड दे कैन बी ए मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, पर हमारी सोसाइटी में कुछ भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है ही नहीं, एक्सेप्ट फ्यू स्कूल्स. और वो भी स्कूल्स भी फोकस ठीक नहीं है उनका. वो एक ही चीज़ जानते हैं कि कैसे ABCD या कैसे नंबर सिखाने हैं, उससे ज़्यादा एक ज़िंदगी को जीने के लिए भी कुछ स्किल्स चाहिए, उसका अंदाज़ा ही नहीं है. एजुकेशन का इतना लिमिटेड हमने बना दिया बिल्कुल, स्कोप. मतलब उसमें कई बच्चे जिनके पे आईडी नहीं है, कुछ और डिसेबिलिटीज हैं या कुछ और इश्यूज हैं, वो आर नॉट दैट फास्ट लर्नर फॉर सम रीजंस, बिल्कुल, उनके लिए भी चैलेंजेस है वहाँ पर. उनके लिए भी नहीं है, बल्कि कुछ है ही नहीं, there is मतलब there is a vast number which falls wayside due to this kind of a mainstream approach. you answered those questions so beautifully, but if you look at your own journey, if you look back 1976 में अगर हम जाते हैं, what would you like to go back and change in your journey? Tough question, because I've been constantly changing. That's so beautiful, actually. Constantly changing. You're evolving to the times. जैसे सिचुएशन आती है कि आप जैसे evolve जैसे करते हैं. सिचुएशन है. एक चीज में आई एम रियली इन ग्रैटिट्यूड वॉट एवर द पावर्स आर, कि मैं प्रॉब्लम के साथ बहुत देर तक ब्रूड नहीं करती. मुझे हमेशा लगता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. लुक फॉर सोल्यूशन. वो चीज ने मुझको हर प्रॉब्लम सिचुएशन से कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया. जैसे ना कभी प्रॉब्लम होती है, अपने ब्रदर के पास जाती ना, तो वो सारे सुन के कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, करना क्या है. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट. प्रॉब्लम तो है, पता है, आगे करना क्या है. आई थिंक दैट्स व्हाट यू हैव काइंड ऑफ मेड बिल्कुल. द. एंड वो प्रिंसिपल इतना बढ़िया काम करता है कि मुस्कान में, अब यू कैन इमेजिन, क्या रिसोर्सेस, लोग भी नहीं मिलते काम करने के लिए, फिर भी करना है, पर कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं. अच्छा ये वर्क नहीं किया, ओके, और रास्ता देखते हैं, और रास्ता देखते हैं. इट वॉज दैट मेंटल एटीट्यूड. अच्छा फिर ये भी जरूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वो हो ही जाएगा. तो फिर देन आई ऑलवेज थिंक अपनी कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगी कि अपनी पूरी कोशिश कर ली थी. I know.
You did your best. उसके बियॉन्ड क्या है? बिल्कुल. कुछ भी नहीं है. तो लाइफ में एक्चुअली धीरे धीरे we all know as we grow up, expect least expectation and best efforts. Beautiful. Beautiful. है ना? इसी बात पे कोई गाना if you want to sing, which हाँ. has probably you sing to Puneet at times, or probably when जो थोड़ा सा low moment हो जाता है you sing to encourage yourself. Any Bollywood song जो आपको अच्छा लगता है. Oh my God. A few lines. सोचा नहीं था अर्चना. उस तरह से कुछ ध्यान नहीं आ रहा. एक जो मुझे बहुत अक्सर मेरे उसमें आता है, अब मैं गाना तो शायद पता नहीं गा पाऊंगी कि नहीं गा पाऊंगी. कोई नहीं. एक है ना, एक जागृति फिल्म का था, चलो चले माँ सपनों के गांव में, तारों से दूर दूर कहीं. और क्या था? तारों से दूर कहीं, माँ सपनों के गाँव में से दूर कहीं, फूलों की छाँव फूलों की में छाँव चलो में चले चले माँ. माँ. Beautiful. So that was Dr. Shanti Aulak, founder of Muskaan, PAE, PIT, as they say, author of A Mother's Reflection, the wonderful book which I urge all of you to read. It's not only talking about psychological need of people with ID, it's also philosophy for life in general. And she's one of the most extraordinary people I have met. वो हंसती रहती हैं. And with all the things that she's surrounded with, she's still smiling and laughing more than I think any one of us does. उन्हीं की बुक से एक और पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी. She said about the Chinese character that depicts two meanings simultaneously, crisis and opportunity. And she says every crisis in life is also an opportunity for immense learning, thereby deepening the meaning of life. So if this conversation moved you, share it with a parent who probably is in this struggle of bringing up a child with ID, or with an employer who wants to understand his employees with ID problems. Share it with even one. It will really matter to spread the understanding, spread the warmth, spread the care to so many other people. And Muskaan's website is muskaan-paepid.org if you want to reach them. Her book is available online, and if you have the means, do come forward and support. So before I wind up, एक गाना मेरी तरफ से भी, which is one of my favorite song. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. Let's make a beautiful world for all of us. Until next time, I'm Archana Kumar, and these conversations do matter. Lots of love.